बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. कहती हूँ कि आपका मुस्तकबिल बेहतर और जो इंग्लिश प्लीज बोले. Always become ready to help us in any inspiring bite like a dog for 30 seconds. तालियां बजा दूं. Laugh for 1 minute. Everybody is smiling only. 1 minute. 1 minute. भाई आवाज आनी भी तो चाहिए. हो गया. टाइम नहीं हुआ. नहीं हो गया चुका. हो गया. थैंक यू सो मच. करनी है. मैं 50 तोला रे 50 तोला. कैसे चल रहा है? हमजा, जैद, आमिर, नूरैन. वाई बाकी और अरे बोलना भी तो है. क्या बोलना है? उनके बारे में नहीं. चुप मत कर. ये सभी मेरे अच्छे दोस्त हैं और हर वक्त मेरे साथ काम आते हैं. और वहाँ बासित भी बैठा है, वो भी. क्लैपिंग. अब कौन है सर? कबीर कबीर. Let's do it. 1 2 3. Clapping. Thank you so much. Salma. And someone insulted me. नहीं पहले टेंशन बाइक. कैसी बोली हमें हिंदी में कैसा लगा यहाँ से जाने में किसी को भी अच्छा नहीं लगा. मुझे नहीं लगा. जोर से तो बोल लीजिए. क्या बोला? रिहान सेकंड आ जाइए. अरे सीधा अबे कबरे जैसे. हाँ जी, पूरा एक्शन एक्टिंग. मैं पकड़ लेती हूँ, आप करें. गिर जा, पीछे गिर जा. कबरे. अबे हाथ पीछे. अरे हाथ क्यों पकड़ना है जी बस. ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पर पड़ता है तो इंसान उठता नहीं, उठ जाता है. करना क्या? अपने पापा की तरह सामने खड़ी रहे. कोई सा आपको फेवरेट सही है यार. सही है. कल के दिन
पेन है पेन पेन बेटा यही बता दो मैं फिल्म नहीं देखता एक्टिंग नहीं कर सकता। हाँ मैं फिल्म नहीं देखता हूँ मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। खान की तो कह रहा इतना भी नहीं है ये तो बैग ला दो अपनी बस। टीचर हैं सारे बहुत याद आएंगे एक एक पल याद आएंगी और ये वक्त कभी भूलूंगा नहीं ज़िंदगी में हमेशा याद रहेगी। खास करके गजनफर सर जयबा मैम निगार मैम वकील सर और प्रिंसिपल सर सबको नहीं भूलूंगा। ये सही है। पीरियड में जो है ना हम गाने की डिस्कशन करते हैं कौन सा सिंगर कहाँ जा रहा है ये लोग करते हैं। Come on the stage. कौन है As we stand on the brink of a new chapter, it's impossible not to reflect on the profound impact our teachers, principal, and of course, our parents have had on our journey. Our teachers have been our guiding light, imparting not just academic knowledge, but invaluable life lessons. Their dedication and passion have shaped our minds and fueled our aspirations. To our esteemed principal, you've been the captain of our ship, steering us through challenges and inspiring us to set sail towards success. DK sir, your leadership has been a beacon of strength, and your belief in our potential has fueled our determination to reach new horizons. And to our first teacher and forever supporters, my parents, your sacrifices, love, and unwavering encouragement have been the foundation of our achievements. You've been our mentors in the trust sense, teaching us resilience, kindness, and importance of dreaming big. You've been our unwavering pillars of support, teaching us not only words, but with the silent strength of your love. As we step into the future, your lessons of resilience and compassion will be our compass, guiding us to its journey. A bouquet to our principal, Sir Muhammad Zaid Khan, sir. Now, I would have to give another one to my dad, who has always been with me in all times. And I would also like to give TK sir, who has always helped me in all times on the classes from 11th and 12th. He is always with me. Sir, please. Thank you very much. A very good morning to respected guests, principal, teachers, my seniors and my dear classmates. I'm Bushra of class 12. It's a pleasure for me to speak here at this farewell party on behalf of my class. Finally, the day has come where all the students of class 12 need to leave our childhood behind and step into the world to create our own paths in life. Each of us has a dream and I thank my school for making us capable enough to achieve our goals and dreams. On the farewell event, I take an opportunity to express my gratitude towards my teachers. I thank our teachers for all the lessons they have taught us, your kindness and caring natures, the reason that we all today are ready to face challenges with smile and courage. We all assure you that we will strive hard to be a successful and responsible citizen of the nation. I'm also thankful to my parents who joined me in such a wonderful school, where I got such talented teachers and amazing friends. I would also like to thank all my friends with whom I have shared my many sweet moments. I thank you friends for all the fun and laughter you shared with me. It is so difficult to say a final goodbye to all of you,
I shall always cherish the moments I spent in school. I request everyone to pardon me in case if I have hurt you during my school days. I wish present here on this note. I end my speech. Thank you. I have a lot of memories. I am extremely thankful to the management and my dear fellow friends for supporting me throughout these years. I joined this school in 5th grade. Ever since then, this place has been like a second home to me, where I have spent most of my time. The teachers have been extremely kind and they also supported us throughout our learning phase. I have had the pleasure of knowing many of these students for years and I have seen them grow and change in so many ways. As we say goodbye today, let us remember this is not the end. We will always be connected by our shared experiences. I wish you all the best of your future endeavors. Thank you. काफ़ी छुट्टी करते थे हम स्कूल में, तो टीचर हमसे कहते थे कि अभी तो तुम छुट्टी कर रहे हो, लेकिन एक दिन तुम्हें खुद तरस होगा स्कूल आने के लिए। अभी तुम छुट्टी कर रहे हो कि स्कूल नहीं जाते, पढ़ाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, बहाना मार रहे हो, लेकिन एक दिन तुम्हें खुद कहोगे, तुम्हें खुद तरस होगे कि काश तुम चले जाते हैं। तो वो आज पूरा रियलाइज़ हो रहा है मेरे को कि आखिरी दिन है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। इस स्कूल से मेरी बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं। मैंने इस स्कूल में 11th में एडमिशन लिया था, बट मेरी 2 साल में बहुत मेमोरीज बनी हैं इस स्कूल में। एंड यहाँ के टीचर्स एंड स्टूडेंट्स बहुत अच्छे थे, जो मेरी फ्रेंडशिप हुई बहुत अच्छी। एंड टीचर्स तो बहुत ही यहाँ के अच्छे थे। एंड शबाना मैम का छुट्टियों पर डांटना मुझे बहुत याद आएगा। एंड वकील सर का भी कान गरम करना सर्दियों में बहुत याद रहेगा। जरीन मैम का पढ़ाई में मैं हिस्ट्री में अच्छा था, बट जरीन मैम के पीरियड में मुझे नींद आ जाया करती थी। एंड सफाना मैम, इंग्लिश में मैं काफ़ी अच्छा नहीं हूँ, मगर इंग्लिश में मैं इंशाल्लाह मेहनत करूँगा। एंड कमर्शियल में ड्राइंग मेरी सही है, बट इंशाल्लाह आगे पढ़ाई करनी है। थैंक यू। मुबश्शिर इसको बुलाएंगे, इनको बुलाएंगे। ये हो गया ना, अब बस इसके भी नाम आखिरी ये बनाया जाए। कभी जुदाई के आंसू तो कभी खुशी के फूल खिल जाते हैं, कभी जुदाई के आंसू तो कभी खुशी के फूल खिल जाते हैं। जिंदगी के सफर में कहीं बिछड़ना तो कहीं नए राहगीर मिल जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम टू माय ऑल टीचर्स एंड माय फ्रेंड्स। आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद नूरैन क्लास 12 ए। अपने स्कूल के कुछ आखिरी लम्हे में अपने टीचरों से कुछ कहना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि स्कूल एक अच्छी जगह है, गलत कहते हैं। स्कूल तो वो जन्नत है जहाँ खीर से मीठी यादें होती हैं, हीरो से अनमोल हमारे दोस्त मिलते हैं। सुबह उठते ही टीचर के लंबे स्पीच सुनना, सुबह होते ही टीचर की लंबी स्पीच सुनते हैं और वही स्पीच हमें ज़िंदगी की ओर खींचते हैं। स्कूल के लाइफ की बात हो और टीचर की बात ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास टीचर से। डियर क्लास टीचर यानी शबाना मैम, अगर गलती हो जाए तो माफ कर दीजिए। आप जब सुबह एक मुस्कान के साथ क्लास में एंट्री करती हैं तो हम बच्चों का पूरा दिन अच्छा गुजरता था। फिर आपके लेक्चर बिना पलके झपकाए सुनते थे और समझते थे, और यही अगर उल्टा हो जाता था, आपका मूड ऑफ हो, तो हम बच्चों का पूरा दिन बेकार जाता था। फिर हमारी हिस्ट्री की टीचर आती है, जरीन फातिमा मैम। दिखती तो है दादी की जैसी, प्यार भी उसी की तरह करती है। ऊपर से तो दिखती है इतनी सख्त, लेकिन अंदर से बहुत मोम दिल है।
आगे एक एक पूरी रो कर दो आगे। और इनकी पढ़ाई तो माशाअल्लाह पिछले पेज में पास्ट में तो अगले पेज में प्रेजेंट में आ जाते थे। तो इनके ऊपर एक शायरी लिखाऊं। नष्ट भ्रष्ट किसने किया, किसने दिया अनुदान, रक्त पिपासु कौन थे लोग महान। हिस्ट्री के टीचर मिले जो गुणों के खान सदा, कहे इतिहास से अच्छे लोग कुछ जान। फिर हमारे इंग्लिश टीचर आती है सफाना में, जो बाहर से दिखती है बहुत सख्त, लेकिन कभी कभी सख्त हो भी जाती है और कभी नरम भी रहती है। बच्चों को इतना सारा काम देती है कि वो अगले दिन वो कर नहीं पाते और फिर बच्चे तैयार रहते हैं अगले दिन डांट सुनने के लिए। फिर हमारे हिंदी टीचर वकील सर अगर गलती हो जाए तो माफ कर। वकील सर बच्चों के साथ कभी फ्रैंकली रहते हैं तो कभी स्ट्रिक्टली, क्योंकि वकील सर है ना। इनकी एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो है मारना, क्योंकि जब मारते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई प्यार कर रहा है। और फिर हमारे आते हैं मोटिवेशनल स्पीकर गजम्पर सर। सर आपके स्पीच सुनकर सही में मैं घर पर जाकर किताबें खोलता था। थैंक यू सो मच। आखिर में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आज स्कूल का लास्ट दिन है। ऑफ कोर्स दुख तो हो रहा है, लेकिन कहना चाहूँगा कि टीचर सही में माँ बाप से बढ़कर हो। थैंक यू सो मच। माय नेम इज मुबशिर फ्रॉम क्लास 12B। मैं इस स्कूल में 6th क्लास में एडमिशन लेकर आया था। इस स्कूल से मेरी 6 साल की यादें जुड़ी हैं। जब मैं 11th कॉमर्स में गया था तो समझता था कि पढ़ाई बहुत मुश्किल है, लेकिन जब टीचर बहुत अच्छे मिल जाए तो मुश्किल से मुश्किल पढ़ाई भी बहुत आसान हो जाती है। मेरे इकोनॉमिक्स के टीचर गदनफर सर ने मेरी 11th में बड़ी मदद की थी इकोनॉमिक्स में पेपर में। सर हम आपको कभी नहीं करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम टू टीचर और माय टू जूनियर एंड ऑल माय बैचमेट्स। तो मैं कुछ फेयरवेल स्पीच तैयार करके आया नहीं हूँ, तो मैंने सोचा मेरे 2 साल की जो यादें हैं वो मैं आप सबके सामने बयां करूँ। तो शुरू करता हूँ मैं गजनफर सर के साथ। गजनफर सर ने मुझे जितना मोटिवेट किया शायद ही किसी को मोटिवेट किया होगा। मुझे स्कूल ना आने पे डांटना, घर से कॉल कर कर के बुलाना, उसके बाद भी मैं शायद ही नाकाम रहा सर की उसमें मोटिवेशन में, मैं आ नहीं पाया स्कूल जाकर। लेकिन फिर भी मैं सर को थैंक यू बोलूँगा कि आपने मुझे इतना मोटिवेट किया है स्कूल आने के लिए और पढ़ने के लिए। उसके बाद मैं हमारे प्रिंसिपल सर के बारे में बोलूँगा कि जब प्रिंसिपल ऑफिस में जाते थे तो बहुत डरे हुए होते थे, लेकिन सर ऐसा इन्वायरमेंट बना देते थे कि हम हंसते खेलते वापस आते थे, ऐसे पढ़ाते थे सर इतना बढ़िया। और आई होप मुझे आगे भी सर से गाइडेंस मिलती रहे। उसके बाद मैं हमारे वकील सर की बात करूँगा, जिन्होंने लेट आने पे हम कॉमर्स वालों को तो सबसे ज़्यादा डांटा है और मारा भी शायद से बहुत ही है। काम ना करने पे, लेट आने पे बहुत डांटा है, लेकिन सर से ज़्यादा प्यार शायद ही किसी ने करा है। उसके बाद मैं साइमा मैम के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। साइमा मैम के पीरियड में भले हम बहुत कम पढ़े हों, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा, सबसे ज़्यादा नॉलेज हमें साइमा मैम के पीरियड में मिलती। तो साइमा मैम को भी एक बार थैंक यू। जितेंद्र सर सर इनके बिजनेस स्टडीज जो इन्होंने 12th में हमें पढ़ाई है हमें आधी समझ में आई है, लेकिन जितनी समझ में आई है उसमें हम पूरे 100%। और आगे भी सर से पूरा सपोर्ट है हमें कि सर हमें आगे भी समझाते रहेंगे। तो मैं कुछ ऐसे प्रिपेयर करके आया नहीं था,
लेकिन सिर्फ कॉमर्स के टीचर्स ही नहीं, बाकी सारी स्ट्रीम के टीचर्स को भी हम सबकी तरफ से थैंक यू। और उन्हें एक भाई ताली बजा दो सारे टीचर्स को, हमें यहाँ पे खड़ा करने के लिए कि हम आगे अपनी लाइफ को हम आगे अपने करियर को सेटल कर सकें और अपना फ्यूचर सेट कर सकें। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। मैं स्कूल में 7th क्लास में आया था, उसके बाद 12th क्लास में लास्ट साल का लास्ट दिन स्कूल का आखिरी दिन है। दोस्त बहुत सारे बने, नूरैन, रैद, एहतिशाम, आमिर, बहुत सारे बने। इंजॉय भी बहुत करा। आज आखिरी दिन अब दोस्त तो हो रहा आज जाने वाले मेहमान स्टूडेंट्स जो 12th क्लास के वो भी, और जो 11th क्लास के मेज़बानी कर रहे हैं। आज ये धर्मेंद्र साहब ठीक है, सर को भेज। हर साल की तरह बेटा देखो, इस बार फिर एक आपका फेयरवेल का ये टाइम आ गया। एक दो बातें बहुत ज़रूरी मैसेज वो मैं आपको दूंगा, उससे ध्यान से सुनिएगा। और ये जो बॉक्सेस आपको मिले ना, ये खाते रहो बैठ के। ऐसी कोई बात नहीं, कुछ बच्चे शर्मा रहे हैं, टीचर से भी रिक्वेस्ट है वो लोग भी ले लेते हैं, बात भी सुनते हैं। आपने ये देखा अभी जो एक गेम हुआ पर्चियों का, कितना आप लोग शर्मा रहे थे आ रहे हैं, तो आपको अंदाजा हो गया ना स्टेज पे बोलना इतना आसान नहीं होता। क्लास में तो बोलने के अलावा कुछ शोर भी करते हैं आप लोग। 12th क्लास के बच्चे जो अब इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में अपने बोर्ड के एग्जाम के लिए अपेयर होंगे, आप सभी के लिए मैनेजमेंट की तरफ से, मेरी तरफ से, हमारे सारे असातिज़ा इकराम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक। और हम उम्मीद करते हैं कि आप एक अच्छा रिजल्ट लाके स्कूल को दोगे, जिससे आपका नाम, आपके वालिदैन का नाम तो रोशन हो ही, लेकिन आपके स्कूल का नाम और आपके टीचर्स का नाम भी काफ़ी ऊंचा होगा। और जब हम रिजल्ट की बात करें ना, तो ऐसा मत लाना कि सिर्फ एक क्वांटिटी वाला रिजल्ट आ जाए, क्वालिटी रिजल्ट चाहिए। आप दोनों में फ़र्क समझते हैं? कल इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं होती, लेकिन जब आप जा रहे हो और अब तो काफ़ी माशाल्लाह मैच्योर हो, तो एक कमिटमेंट, अपना एक मकसद बनाओ, एक ऑब्जेक्टिव बनाओ लाइफ का कि हमको क्या करना है। अब आपकी जो बचपने वाली ज़िंदगी थी ना, वो लगभग ख़त्म हो गई। अब जिम्मेदारी वाली लाइफ आ रही है। तो पढ़ने का कमिटमेंट बनाओ, किस प्रोफेशन में आपको जाना है उसका कमिटमेंट कुछ करो, अपने आप से करो, हमसे नहीं, अपने आप से करो और उस लाइन पे काम करो। मुझे याद आ रहा है एक बच्चे का, आप सबके बच्चों के लिए सुनने वाली बात है, ये जो पीछे बच्चे बात कर रहे हैं ना, अब आज तो आप लोग कह भी नहीं सकते, मेहमान हो आप, डांट डपट भी नहीं कर सकते। तो एक बच्चा है, गालिबन उसका नाम है आमिर, मोहम्मद आमिर है वो बच्चा इस वक्त। जरा खड़ा होना मोहम्मद आमिर, ये बच्चा है, जरा इसको देखो आप, बेटा पीछे मुड़ के भी दिखाओ, आप बैठ जाओ। देखो इस बच्चे का, इसने कमिटमेंट किया जो मेरी नॉलेज में है। जब ये 11th क्लास में था, इसकी अटेंडेंस शॉर्ट थी, बड़ी डांट डपट इसके ऊपर होती थी सभी टीचर्स की। फिर अचानक इसने अपने आप को टटोला और इसने ये कमिटमेंट किया कि मैं अब 12th में जब आऊँगा ना, तो 100% अटेंडेंस लाऊंगा। जैसा आप लोग कह देते हैं, कहो तो करके भी दिखाओ। और आप जोरदार ताली बजाइए इस बच्चे की 100% अटेंडेंस है। उसने अपने टीचर से कमिटमेंट किया कि मैडम, शबाना मैडम से, ऐसी बात है ना कि मैं जब 12th में आऊँगा ना, तो आपको ला के दिखाऊंगा। और मुझे अच्छे से मालूम है, इसके पेरेंट्स ने आके टीचर से भी कहा, मुझसे भी कहा, कई बार के बच्चे बीमार है तब भी चला आता है स्कूल, पता नहीं उसको क्या हो गया है। तो उसको हुआ कुछ नहीं, उसका कमिटमेंट।
तो ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए इसको आज एक प्राइज दिया जाएगा। इसकी टीचर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आ जाओ बेटा हामिद, जोरदार ताली बजाइए उसके लिए। देखिए कितनी बड़ी बात है, 100% अटेंडेंस लाना। 11th में कितनी थी बेटा? 11 रिहान सर, वकील सर, शबान भाई स्टेज नहीं है, मोए हो गया। सफाना मैम, भाई स्टेज नहीं है, मोए हो गया। और दूसरी चीज अपनी मेहनत और कोशिश, ये दोनों चीजें अगर मिल जाएंगी तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। शाही का जिगर चाहिए, चीते का तजस्सुस, दुनिया नहीं मर्दाने जफाकश के लिए तंग। आप ये ना सोचिए कि अगर अभी तक आप किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर रहे हैं तो ज़िंदगी के आगे आने वाले मराहिल में भी आप कमज़ोर रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहे हैं जिनका 12th तक बहुत ही अच्छा, जिनकी परफॉर्मेंस 12th तक अच्छी नहीं रही, लेकिन उन स्टूडेंट्स ने जब शऊरी ज़िंदगी में कदम रखा है तो बड़ी बड़ी कामयाबी के मनाजिल तय किए हैं। बाज़ उनमें से IAS बने हैं, IFS बने हैं, IPS बने हैं। अपना गोल मुतय्यन कीजिए और उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए इंशाअल्लाह अज़ीज़। इस शेर के साथ के जवानों आ रही हैं ये सदाएं आबशारों से, जवानों आ रही हैं ये सदाएं आबशारों से, चट्टानें चूर हो जाएं जो हो अज़्मे सफ़र पैदा। इसी के साथ बहुत ही नेक ख्वाहिशात और दुआ के साथ हम आपको अलविदा कहते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप अपनी कोशिशों से, अपनी मेहनत से आप खुद अपने वालिदैन का नाम रोशन करेंगे, अपने असातिज़ा का नाम रोशन करेंगे और कामयाबी और कामरानी के बामे उरूज तक इंशाअल्लाह पहुँचेंगे। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।